Yes, good morning, all of you. Today I am taking with you people a concept on the time value of money, जिसका एक फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. It plays a very important role in taking the finance decision, in evaluating the various investment proposals, in evaluating the cash flows. So you can say it is one of a very important tool which we use in taking the finance decision. तो आज हम बात करने वाले हैं about the time value of money. So let's understand the concept first. The time value of money says that the money which we receive in present, जिसको हम लोग लिख सकते हैं present money, the money which we receive in present, जो पैसा आज हमारे पास है, it is better or it is valuable than the future money. यानी कि जो 100 रुपये अभी मेरी जेब में है और एक जो 100 रुपये मुझे 1 साल या 2 साल के बाद मिलने वाले हैं, अगर उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो जो 100 रुपये अभी मेरी जेब में है, दे आर मोर वैल्यूएबल, दे आर मोर प्रेशियस देन ₹100 which I will receive after 1 or 2 years. That means the present money is better than or valuable than the future money. अब रीज़न उठता है why? It's very simple, because this particular present money, this can be invested at a certain rate. Due to which in future its value is going to be greater. Its value is going to be greater than this particular future money. यानी कि जो 100 रुपये अभी आपके पास है, उस 100 रुपये को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं. जब आप उस 100 रुपये को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू जो होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस फ्यूचर ₹100 जो आपको 1 या 2 साल के बाद मिलने वाला है. एंड दैट इज व्हाई द प्रेजेंट मनी इज ऑलवेज बेटर देन द फ्यूचर मनी. दिस वी कैन अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट अस से अभी आपके पास 100 रुपये हैं और एक और केस लेते हैं जिसमें ये 100 रुपये आपको मिलेंगे लेट अस से आफ्टर 1 ईयर. तो जो ये 100 रुपये अभी आपके पास है, लेट अस से इसको आपने बैंक में इसको आपने डिपॉजिट किया एंड से यू गेट 5% इंटरेस्ट रेट. तो 5% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर 1 ईयर इसमें ₹5 इंटरेस्ट ऐड हो गया एंड सो आफ्टर 1 ईयर दिस विल बी इक्वल टू 105. जबकि ये जो 100 रुपये आपको 1 साल के बाद मिलने वाले हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ऑब्वियसली 100. तो ऑब्वियसली दिस 105 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ₹100 which I will get after 1 year. So that is why the essence of the time value of money is that the present money is valuable than the future money, because the present money can be invested to earn a certain return, to earn a certain income, and so its future value is always going to be more than the money which I will get in future. इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से why we consider the present money better than the future money. Let's try to see the other reasons also as to why the present money is better than future money. Another reason that is known as inflation. Obviously, with inflation, the money loses its purchasing power. जब महंगाई आ जाती है तो मनी की जो परचेजिंग पावर है, उसकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो जो 100 रुपये आपके पास है अभी प्रेजेंट और जो 100 रुपये आपके पास आएंगे आज से 2 साल के बाद, तो ऑब्वियसली जो 100 रुपये अभी आपके पास हैं उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ₹100 which you will get after 2 years because of inflation. So due to inflation, right, as the time progresses, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है, द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी ऑल्सो डिक्लाइंस.
due to which the present money is better than the future money. The third is the risk. जो पैसा अभी आपके पास है, आपकी जेब में, that is certain, वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं, वो पैसा आपके पास आ चुका है, it is in your possession. लेकिन जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, right, that is always uncertain. So in the present money there is no risk, there is no uncertainty, whereas in the future money there is always a risk factor. क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, right, the conditions may change, the things may become uncertain. आपने किसी को 100 रुपये अपने किसी फ्रेंड को दे दिए, आज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, यू आर श्योर कि ठीक है पैसे आ जाएंगे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, उसका बिजनेस ना चले, ही मे लूज हिज जॉब, एंड सो दिस ₹100 कैन बी एट रिस्क ऑल्सो. तो इसलिए द प्रेजेंट मनी कैरीज नो रिस्क बिकॉज दैट इज इन द इमीडिएट होल्डिंग ऑफ द पर्सन, while the future money it always carries certain amount of risk and uncertainty because the future is always uncertain. So these are some of the reasons, and the fourth reason, that is the postponement of consumption. Postponement of consumption. What does it mean? It means कि जो 100 रुपये अभी आपके पास है, that money you can spend somewhere and you can enjoy the possession of the goods. लेकिन अगर यही 100 रुपये आपको 1 साल के बाद मिले तो क्या होगा, आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा. That means you will have to postpone the consumption of the goods for at least 1 year till you get that money. So for these reasons you will find that the present money carries more value than the future money. So this difference, you can say, in the value of the money which arises due to its occurrence at the different time intervals is known as a time value of money. कि सिर्फ वही अमाउंट जो हमें आज मिल रहा है और वही अमाउंट जो हमें 2 साल के बाद मिलने वाला है, उन दोनों की वैल्यूएशन में जो डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड दिस इज एक्सप्रेस बेसिकली एज अ परसेंटेज. इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज ऑन द अमाउंट, and this is precisely, and this is somewhat equivalent to nothing but that is known as a interest rate. इसीलिए जो हम पैसा किसी को देते हैं एज अ लोन, तो वी ऑलवेज चार्ज सर्टेन इंटरेस्ट unless he is a very very close one. Otherwise normally जो भी पैसा हम लोग मार्केट में किसी को उधार पे देते हैं, whatever the money we provide to any of the outsider in the market as a loan, so we always charge a certain interest rate. तो जो interest rate जो होता है, it is basically the compensation for the time value. It is basically the compensation for all these factors: inflation, risk, the consumption that we are going to postpone, and you can say the investment opportunity that we are losing by lending that money. क्योंकि वो पैसा आपने किसी को दे दिया उधार पे, तो अब वो पैसा आपके पास नहीं है, तो पैसा आपके पास नहीं होने की वजह से you are not able to you can say invest that money elsewhere. So that is why you need the compensation for all these factors. तो इन सभी का जो compensation जो होता है in the composite term, that is defined as the interest rate, which is expressed as a percentage on the money. So say for example when I say interest rate is 10%, so 10% is basically the compensation for the time value. Now let's understand its application. कि how we use the time value of money, how we use this concept of time value of money in the decision making. So here this time value of money, it is used in analyzing the cash flows. It is used in analyzing the cash flows. अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस से आपको इन्वेस्ट करने 100 रुपये, यू हैव ₹100 टू इन्वेस्ट, फॉर विच यू हैव 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, A and B.
दोनों केसेस में जो होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेट्स मेक इट सिंपल, लेट अस से दिस इज ऑफ 3 years। यानी कि 100 रुपये को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑल्टरनेट है, इधर यू कैन इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटी ए और यू कैन इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटी बी, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट इन बोथ द केसेस यू विल गेट बैक द मनी आफ्टर 3 years। अब जो प्रोजेक्ट ए है वो आफ्टर 1 year आपको देता है 15 रुपीज़, सेकेंड ईयर के बाद आपको 20 रुपीज़ रिटर्न करता है, तीसरे साल के बाद आपको लेट अस से 12 रुपीज़ रिटर्न कर देता है, एंड अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल यानी कि 100। नाउ लेट्स लुक एट द रिटर्न्स ऑफ प्रोजेक्ट बी। बी वाले केस में you are getting 20 rupees, then let us say you get 25, let us say you get 6 along with rupees 100 as a principal repayment। अब सपोज आपको ये फाइंड आउट करना है that which of the opportunity is more profitable, या हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इधर आई शुड इन्वेस्ट इन ए और आई शुड इन्वेस्ट इन बी। तो अगर हम लोग इसको लेमैन की तरह देखते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली ऐड द कैश फ्लोज एंड विल ट्राई टू सी कि हमें किस प्रोजेक्ट में बेटर कैश फ्लोज मिलते हैं। लेट अस से अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं सिंपली, अगर हम उसकी एडिशंस करते हैं तो आवर आंसर विल बी लेट अस से फ्रॉम प्रोजेक्ट ए आवर टोटल कैश फ्लो इज 147 and here our total cash flow is let us say 141। so obviously I would say that we should invest in A in comparison to B because A generates better cash flow than B। लेकिन यहाँ पे जो हमने सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो क्या की है, that we have ignored the time value of money। how? first of all ये जो 15 रुपीज़ है ये मुझे मिल रहे हैं एक साल के बाद, ये 20 रुपीज़ जो है वी आर गेटिंग आफ्टर 2 years, ऐसे ही 12 प्लस 100 112 आई एम गेटिंग आफ्टर 3 years। तो यानी कि इन तीनों जो कैश फ्लोज हैं इनका जो टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट है दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। दैट मीन्स बिकॉज दीज कैश फ्लोज आर जनरेटेड एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। Now since this cash flows they are being generated at the different time intervals, that is why we cannot add them। Remember, we cannot add them। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक कॉमन टाइम फ्रेम पे लेके आना होगा। I have to bring it to the common time frame before I start adding them। अगर हम सिर्फ उसको इस तरह से ऐड करेंगे तो that means we have ignored the concept of the time value of money। Simple addition का मतलब क्या है कि I am giving the same weightage, I am giving the equal weightage to 15 also, 20 also and 112 also। The same thing we have done in the project B also। जबकि देखा जाए तो अगर हम weightage देखते हैं तो obviously 15 should have been given more weightage in comparison to 20 and 20 should have been given more weightage in comparison to 112। ये 100 और 12 हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो कैश फ्लोज हैं वो हमें एक ही टाइम पे मिल रहे हैं आफ्टर 3rd year। सिमिलरली वी कैन ऐड 100 प्लस 6 बिकॉज वी आर गेटिंग दीज टू कैश फ्लोज एट द आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। दैट मीन्स वी आर गेटिंग इट इन आफ्टर द 3rd year। लेकिन वी कैन नॉट ऐड 15 प्लस 20 प्लस 112 क्योंकि तीनों की जो अकरेंस है दैट इज एट द डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो इसलिए before we analyze these investment opportunities or before we reach at any of the decision, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि ये जितने भी आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं इन सभी कैश फ्लोज को we are supposed to convert them into a common time frame। we have to convert them into a common time frame। और कॉमन टाइम फ्रेम का मतलब क्या होगा, इधर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट वैल्यू कि ये जो 15 रुपीज़ मेरे को एक साल के बाद मिलने वाले हैं इसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है।
इसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या है. सिमिलरली आई ट्राई टू फाइंड आउट कि जो 20 रुपीज़ मुझे क्या नाम है 2 साल के बाद मिलेंगे, उसका प्रेजेंट वर्थ कितना बनता है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, एंड सेम वे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 112, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड देम, बिकॉज अब एडिशन करना लॉजिकल है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सभी कैश फ्लोज को कन्वर्ट कर दिया टू द कॉमन टाइम फ्रेम. एंड व्हाट इज द कॉमन टाइम फ्रेम आई हैव टेकन द कॉमन टाइम फ्रेम एज प्रेजेंट वैल्यू, व्हिच मींस आई हैव कन्वर्टेड देम इनटू अ टाइम फ्रेम वेयर t इज इक्वल टू 0. यानी कि हम देखते हैं कि इसकी इमीडिएट वैल्यू कितनी बनती है. चाहे बेशक हमें ये 15 रुपये हमें 1 साल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इमीडिएट वर्थ क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ. So that means we are converting all these cash flows into a common time frame, that is t is equal to 0. And this is done by finding out the present value of the cash flows. That is done by finding out the present value of the cash flows. That means we try to find out the present value of these cash flows. और इसका सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, we try to find out कि what will be their worth, let us say in a common future time frame, which means let us say कि 3 साल के बाद इस 15 रुपीज़ की क्या वैल्यू रहेगी, 20 रुपीज़ की 3 साल के बाद कितनी वैल्यू रहेगी, आज से 3 साल के बाद. यानी कि आज से 3 साल के बाद what is the worth of ₹15, what is the worth of ₹20, what is the worth of ₹112. Same way I'll do the same thing for project or investment B also, and then I can make the comparison. तो जब हम we try to find out the value of the cash flows keeping into mind the future time frame, so that is known as a future value. And when we try to find out what is the worth of the future cash flows in terms of the present time frame or the immediate time frame where t is equal to 0, that is known as a present value. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू हम क्यों निकालते हैं. अगर कोई भी कैश फ्लोज हैं, अगर वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आ रहे हैं, तो रिमेंबर नीदर वी कैन कंपेयर देम स्ट्रेट अवे नॉर दे कैन बी एडेड, क्योंकि उनका जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि उन कैश फ्लोज को हमें कन्वर्ट करना होता है into the cash flows for a common time frame. तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं. या तो हम पता करते हैं कि उसकी what is the present value, it means we convert them into a time frame where t is equal to 0, or we try to find them their value in terms of the future time frame, और उस केस में we find out the future value.